Hello students, today we will do the rest of the questions of exercise 5.2. It is given that in question number 8 there are total 50 terms and third term is 12. Find it. In AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. हमें 29th term find out करनी है. We have the formula. What is the formula? An equals to a plus n minus 1 into d. See, last term means क्योंकि इसमें total number of terms कितनी है 50. That means यहाँ n की value हुई है 50. So we have to apply the formula in these two. बताया था कि इन दोनों में formula apply करना. पहले लेते हैं a3. a3 is equals to 12. Formula is an equals to a plus n minus 1 into d. n equals to 3 put करते हैं. So a3 is equals to a plus 3 minus 1 into d. What is the value of a3? a3 is 12 is equals to a plus 2d. एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है. Next a50. a50 is equals to 106. n is equals to 50. क्वेश्चन में डालेंगे फॉर्मूले में. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? an डालते हैं. सो a50 is equals to a plus 50 minus 1 into d. What is the value of a50? a50 is 106. So 106 is equals to a plus 49d. सोल्व करने के लिए बताया था, बहुत इजी है. दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेंगे. 106 is equals to a plus 49d. इसके नीचे दूसरी इक्वेशंस 12 equals to a plus 2d. माइनस करते हैं, अप्लाई लगाते हैं. नेक्स्ट इज साइन चेंज करेंगे. प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. 106 माइनस 12 कितना आएगा? 6 minus 2 4, 10 minus 1 9, 49 minus 2 47 d. 94 upon 47 is equals to d. So cancel out is 2. So d is equals to 2. अब d किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. 12 equals to a plus 2d. इक्वेशन थी, d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. So 12 equals to a plus 2 into 2. So 12 2 to the 4, 4 is lying to minus 4 is equals to a is equals to 8. हमारे पास d भी आ गया, a भी आ गया. Now we have to find a29. an equals to a plus n minus 1 into d. Put n is equals to 29. a29 equals to a की वैल्यू हमारे पास है 8. 29 minus 1. d की वैल्यू हमारे पास है 2. So a29 is equals to 8 plus 28 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे. 8 plus 54 is equals to 60. So that is our answer. So next few questions are same. Come on the next one. Question 9 is same as that of question 8. Now question 10. The 17th term of AP, 17th term is A17 of term AP, exceeds its 10th term. Exceeds means plus its 10th term by 7. So it is clearly written as 17th term of AP exceeds by 7 its 10th term. Find the common difference. Now we have to find D. Formula apply करते हैं. an equals to a plus n minus 1 into d. First n is equals to 17 डालना है. सेकंड n is equals to 10 डालना. डालेंगे
A17 equals to A plus 17 minus 1 16D. A10 is equals to A plus 10 minus 1 90. सीधा सीधा आप फॉर्मूला चेक कर लो. Now put these formulas in equation 10. A17 is A plus 16D, A plus 9D plus 7. A से cancel 9 इधर ले आओ 16D minus 9D equals to 7. 7D equals to 7. D is equals to 7 upon 7. So D is equals to. So that is done. Come on, the next question. Next question is question number 11. An AP is 3, 15, 27, 39 and so on. Which term of AP this will be 132 more? Which term of this AP is 132 more than its 54th term? Which term of this AP is 132 more than 54th term? वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अगर a 54 निकालना है तो a 54 इक्वल्स टू a प्लस 54 माइनस वन इंटू डी यानी 53d. डालते हैं वैल्यू, ये आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी 132 प्लस यहाँ आएगा a प्लस 54 माइनस वन यानी 53d. a से कैंसिल. n minus 1 into d. d क्या है? d is 15 minus 3. बाद वाले टर्म माइनस पहले वाले टर्म, that is 12. 12 equals to 132 plus 53 into 12. So 12 कॉमन ले सकते हैं, लेंगे 12 into 12 144 and 12 into 11 132. So हम 12 कॉमन ले लेते हैं. n minus 1 into 12, इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 11 और यहाँ बचेगा 53. 12 से 12 कैंसिल. n minus 1 equals to ऐड कर देंगे कितना आएगा? That is 64. n is equals to 64 plus 1. n is equals to 64. So that is our answer. So let's do the next one. Next is question number 12. That question is important. Two AP have the same common difference. भाई हम दो AP लिख लेते हैं. First an equals to a plus n minus 1 into d. एक दूसरी AP भी है, an dash equals to a dash plus n minus 1 into d. So it says that two APs have same common difference. तो इसमें भी हमने d लिखा, इसमें भी हमने d लिखा, बाकी सब कुछ डैश में. The difference between their 100 term is 100, यानी a100 equals to a plus 99d. इसका आएगा a100 dash equal to a dash plus 99d. डिफरेंस करता है दोनों का, a100 माइनस a100 डैश, a माइनस c इक्वल्स टू क्या है? a प्लस 99d माइनस ये a डैश प्लस 99d. सो a100 माइनस a100 डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? a प्लस
99d माइनस a डैश माइनस 99d, ये कैंसिल हो गया। सो a 100 माइनस 100 कितना दिया हुआ है, a 100 माइनस a 100 डैश इक्वल्स टू a माइनस a डैश। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 100। It says that 100th term of difference of AP is 100. What is the difference between 1000 term? अब ये तो हमारा केस हुआ फर्स्ट। अब इन्होंने पूछा है what is the difference between 1000 term, 1000 माइनस a डैश का 1000 क्या है, ठीक है। हम अब अपने इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में 1000 डालते हैं, कितना आएगा, a 1000 माइ इक्वल्स टू a प्लस 999 d। इसके लिए क्या आएगा, a डैश 1000 इक्वल्स टू a डैश प्लस 999 d। दोनों का डिफरेंस करते हैं, a 1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल्स टू a प्लस 999 d माइनस a डैश प्लस 999 करता है माइनस। सो a 1000 माइनस a डैश 1000 इज इक्वल्स टू a प्लस 999 d माइनस मल्टीप्लाई करते हैं a डैश, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द आंसर, a माइनस a डैश। और a माइनस a डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। सो चाहे डिफरेंस हम 100 टर्म का करें तो भी 100 आएगा, 1000 टर्म का करेंगे तो भी 1000 आएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 to 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आते हैं, ठीक है। एक तो ढूंढते हैं फर्स्ट टर्म, 10 के बाद ऐसी कौन सी टर्म है जो 4 का मल्टीपल हो, दैट इज 12। तो 4 से अगली तो हो जाएगी 12, 12 से अगला 16 से अगला 20 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में ये तो कहा है कि 4 से मल्टीपल कितने हैं, 250। डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता। इससे पहले ऐसी कौन सी टर्म है जो डिवाइड हो जाती है 4 से, दैट इज 248। चेक कर लेते हैं, 4 से 6 4 जा 24, 4 2 जा 62, ठीक है। सो दैट मींस हमारी लास्ट टर्म है 248 जो डिवाइड हो जाती है किससे, 4 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपनी एक एपी बना लो, हमने एपी बनाई है। क्वेश्चन इज दैट मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इन दोनों के बीच में 4 के कौन कौन से मल्टीपल है, यानी जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 10 के बाद कौन सी टर्म ऐसी, यानी 12, 10 तो डिवाइड नहीं होता, ऐसी 250 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, दैट इज 248। अब हमें पता लग गया, अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द n। पूछा ना मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल है कितने हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। सो n हमें निकालना है। an क्या है, लास्ट टर्म 248 इस AP। a क्या है, फर्स्ट टर्म 12। कॉमन डिफरेंस कितना है, 16 माइनस 4 दैट इज 4। 16 माइनस 12, 4 का मल्टीपल निकालो, डिफरेंस भी 4 होगा। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज 248, a की वैल्यू इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 4। प्लस को इधर ले आते हैं, 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। माइनस करके आएगा 236, मल्टीप्लाई वाला 4 है, आएगा डिवाइड में कितना आएगा, 4 5 50, 36
59 इक्वल्स टू n माइनस वन, वन इधर आएगा, 59 प्लस वन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू कितनी आई, 6, so that is our answer. So multiple of 4 कितना है, that is 60, इसके बीच में मल्टीपल है 60. ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एंड द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल. एक हमारे पास 63, 65, 67, एक तो AP ये है, एक है 3, 10, 17. उन्होंने कहा कि n की वैल्यू क्या हो जिसके लिए इसकी लास्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म इक्वल हो जाए. हमने बताया जब भी दो एपी लेते हैं तो एक को ए लेंगे और एक को ए डैश ले लेंगे. तो फॉर्मूला क्या आएगा, एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन दोनों में सेम होगा, यहाँ पर डी डैश होगा, डी की वैल्यू अलग होगी. ए की वैल्यू क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म इज 63, डी 65 माइनस 63 दैट इज 2. यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आएगी 2, और ए की वैल्यू क्या आएगी 63, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी 3 और डी की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 3 7. ठीक है, करते हैं ए डैश डी डैश. ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस वन और डी डैश की वैल्यू कितनी है 7. प्लस वाला इधर ले आओ, 63 माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, n माइनस वन इंटू टू, ये जाएगा माइनस का, प्लस का उधर जाएगा माइनस का. क्लियर. 3 इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, इसको उधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया. 63 माइनस 3 दैट इज 60. इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, n माइनस कॉमन ले लो. यहाँ तो बचेगा n माइनस वन कॉमन, ये माइनस, ये है 2, ये है माइनस 2 और ये है 7. सो 60 इक्वल्स टू n माइनस वन, कितना बचेगा 5. 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 60 अपॉन 5 दैट इज 12. 12 इक्वल्स टू n माइनस वन, n इक्वल्स टू 30, माइनस वन इधर आके प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू 13. एंड दैट मींस 13th टर्म ऐसी होंगी जो दोनों इक्वेशंस में क्या हो, इक्वल हो. टेक द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 17. 17 is find the 20th term, find the 20th term from the last. कहां से निकालनी है, from the last of AP. 3, 8, 13 and 250. ठीक है, पहले इसमें ये निकालते कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बाकी सारा काम बाद में. ये किस में फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 20th टर्म, पीछे से 20th टर्म निकालनी है. ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 और फॉर्मूला इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. करते हैं, व्हाट इज an इक्वल्स टू लास्ट टर्म कितनी है 253, n की वैल्यू दी हुई, ये हमारे पास d है, n की वैल्यू 253 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 5. सो 253 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5. ले लिया इधर,
250 मल्टीप्लाई वाला कहाँ है, डिवाइड में, n माइनस वन कैंसिल करो, दैट इज 50, तो 50 प्लस वन इक्वल्स टू n, माइनस वन इधर आएगा प्लस वन हो जाएगा, तो 51 इक्वल्स टू n। अब लास्ट से हमें 20th टर्म निकालनी है, बट 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30। अब पीछे से काउंट करते हैं, 20th टर्म फ्रॉम द बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। या सीधे सीधे 51 में से 20 माइनस करके निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, 32 निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड a 32 इक्वल्स टू a प्लस 32 माइनस 1 इंटू d। a 32 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3, 31 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5, a 32 इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस a 32 इक्वल्स टू कितना है 1। That is our answer. So try it out. That is all for this class. If any problem, please ask.